Hello everyone, today I'll be sharing another legal story with you. So what happened on 27th August 2020 is that the Supreme Court was dealing with the Vikram Bakshi and others versus RP Khosla in another case. So in this case, basically the facts were that there was a corporate dispute that arose between the Bakshi and Khosla group. So there was a corporate dispute that arose between the Bakshi and Khosla group over a resort project in Kasauli developed through MRPL. Right, so there was a dispute between Bakshi and Khosla group. So Sonia Khosla, she approached the company law board, okay, and filed a case for alleged operation and mismanagement in MRPL. Okay, so she filed a case regarding alleged operation and mismanagement. Okay, she claimed that Sonia Khosla claimed that the Bakshi group filed a forged minutes of annual general meeting, right? So they filed a forged minutes of annual general meeting, okay, which amount to perjury and sought criminal prosecution under section 340 of CRPC. Right, so Sonia Khosla claimed that the Bakshi group has filed forged minutes of annual general meeting and this amount to perjury, and they sought criminal prosecution under section 340 of CRPC. Right, in 2014 what happened, the Supreme Court ruled that the company law board should decide both the company case and perjury application and restrain the Delhi High Court from proceedings further. So in 2014 what happened, the Supreme Court clarified and ruled that both the matters that were claimed by the Sonia Khosla regarding the company case and the perjury application regarding the dispute, right, between the Bakshi and Khosla groups, that dispute and the perjury application, that both should be decided by the company law board itself and not the Delhi High Court. So they restrained the Delhi High Court. Okay, thereafter what happened, in 2019 another perjury application, so another perjury application was filed by the Khosla group in the Delhi High Court alleging that the false affidavit had been filed. So another perjury application has been filed by the Khosla group in Delhi High Court. So what did the Delhi High Court do? The Delhi High Court dismissed the application, right, in 2020, August 2020. So the application of perjury was filed by the Khosla group in Delhi High Court in 2019, and the same application was dismissed by the Delhi High Court in August 2020, citing the 2014 Supreme Court order as a bar. Right, the Supreme Court in 2014 ruled that both the matter, that the disputed matter, corporate dispute, and the perjury application to be decided by the company law board and not the Delhi High Court. So they cited that order of the Supreme Court and dismissed the application that was filed in 2019. Okay, thereafter the Khosla group again approached the High Court. Once the application was dismissed in 2020, the Khosla group approached the High Court to recall its 2020 judgment. So they अगेन अप्रोच द हाई कोर्ट कि भाई जो आपने 2020 में जो जजमेंट पास किया था ऑफ डिसमिसिंग, आप उसको रिकॉल करो. और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई जो कंपनी पिटीशन थी वो विड्रॉ कर ली गई थी फरवरी में. In February the company petition was withdrawn, right, but this fact was not mentioned or brought before the notice of the court, right. तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जो हमने मतलब जो कंपनी पिटीशन थी वो विड्रॉ कर ली गई थी फेब में ही, राइट, और जो परजरी एप्लीकेशन है, राइट, वो जब उस पे जब कोर्ट जजमेंट दे रहा था उस टाइम पे ये फैक्ट जो कि विड्रॉ का फैक्ट था वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया था. इसलिए जो है हम आपके पास अप्रोच किए हैं, किसके पास, दिल्ली हाई कोर्ट के पास, कि भाई जो आपने 2020 में जो जजमेंट पास किया था उसको आप रिकॉल कर लो. ठीक है, दिस इज़ व्हाट हैपेंड, राइट, ये चीज़ हुई. ठीक है, अब क्या हुआ, जो हाई कोर्ट थी उसने उसका आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया. ठीक है, और उन्होंने अपना जो 2020 में जो जजमेंट था रिगार्डिंग दी डिसमिसल, राइट, ऑफ दी एप्लीकेशन उसको रिकॉल कर लिया. ठीक है, तो जो रीओपनिंग जो परजरी का इशू था उसको रीओपन कर लिया गया.
ठीक है, ये कब किया गया? मई 2021 में उस परजरी के इशू को रीओपन कर लिया गया। ठीक, अब जो हाई कोर्ट था उसमें जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कि भाई रिकॉल का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, उससे एक प्रॉम्प्ट हुई एक अपील, जो कि बख्शी ग्रुप ने अपील फाइल किया। ठीक है, अपील किसने फाइल किया? बख्शी ग्रुप ने। ऑफ कोर्स बख्शी ग्रुप फाइल करेगा क्योंकि खोसला ग्रुप ने रिकॉल के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिस पे जो हाई कोर्ट है उसने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, उसने वो रिकॉल कर लिया उस जजमेंट को। तो वो अब परजरी की जो प्रोसीडिंग्स है वो बख्शी ग्रुप के अगेंस्ट फाइल हो गई, वो ओपन हो गई। तो अब इस सिनेरियो में बख्शी ग्रुप ने अपील करी हाई कोर्ट के जो रिकॉल ऑर्डर थे उसके अगेंस्ट इन दी सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ऑफ रिकॉल ऑफ द 2020 जजमेंट वो इलीगल है अंडर सेक्शन 362 ऑफ CRPC। ठीक है, ये हुआ है अभी तक। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई ये सेक्शन 362 ऑफ CRPC है क्या। ठीक है, सो जो सेक्शन 362 ऑफ CRPC है, ये कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट, ये कोर्ट को बार करता है फ्रॉम अल्टरिंग द जजमेंट्स, राइट। तो ये क्या कहता है कि नो कोर्ट, राइट, when it has signed its judgment or final order of disposing a case shall alter or review the same except to correct a clerical or arithmetical error। तो ये क्लियरली बार करता है कोर्ट को कि भाई अगर एक बार आपने कोई जजमेंट को साइन कर दिया है या फाइनल ऑर्डर को साइन कर दिया है और आपने उस फाइनल ऑर्डर को साइन करके उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो आप कभी भी कोई भी जजमेंट को रिकॉल नहीं करेंगे और उसको ऑल्टर और रिव्यू नहीं करेंगे एक्सेप्ट टू करेक्ट अ क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर। क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर के लिए आप कर सकते हैं, उसको ऑल्टर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई और जजमेंट या फाइनल ऑर्डर जिससे कोई केस डिस्पोज ऑफ हो गया हो उसको वापस जो है ऑल्टर और रिव्यू नहीं करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली 362 का बार जो है वो कोर्ट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब क्या हुआ इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोर्ट कैन नॉट रिव्यू और रिकॉल देयर जजमेंट। ठीक है, कोर्ट जो है अपना जो जजमेंट है उसको रिकॉल और रिव्यू नहीं कर सकता एक्सेप्ट टू करेक्ट क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर, राइट। क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर के को करेक्ट करने के अलावा वो किसी सिर्फ उस पर्पस के लिए ही वो कोई जजमेंट को रिव्यू कर सकता है या रिकॉल कर सकता है, उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए वो उस जजमेंट को रिव्यू नहीं करेगा और रिकॉल नहीं करेगा जो ऑलरेडी साइन कर चुका है और वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। तो कोर्ट ने 362 को ही वापस रीट्रेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि जो द मोमेंट जो कोर्ट है उसने अपना जजमेंट या फाइनल ऑर्डर पास कर दिया, उसी मोमेंट से जो कोर्ट है वो फंक्शंस ऑफिशियो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो अगर किसी बॉडी ने, ठीक है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है, ठीक है, उसके जो ऑफिस का फंक्शन था वो उसने परफॉर्म कर दिया है, ठीक है, तो उसकी अथॉरिटी अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और अब वो अपने ऑर्डर को रिकॉल या रिविजिट नहीं कर सकता, राइट। सो इसका लिटरल मीनिंग फंक्शंस ऑफिशियो का यही है, हैविंग परफॉर्म्स वन ड्यूटी। तो उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है या अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर दिया है, और जब कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट या जो है वो डिलीवर कर दिया है तो वो अपनी पावर लूज़ कर देता है टू रिविजिट और रीऑल्टर द डिसीजन, राइट। दिस इज़ व्हाट फंक्शंस ऑफिशियो मीन। तो जब भी जो कोर्ट है अपना जजमेंट साइन कर देगा या फाइनल ऑर्डर साइन कर देगा और डिस्पोज ऑफ केस कर देगा, उसी मोमेंट से जो कोर्ट है वो फंक्शंस ऑफिशियो हो जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर 362 का बार एप्लीकेबल होगा, राइट, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके पास जो है इनहेरेंट पावर है, विथ हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है अंडर 482। ठीक है, उस डिस्पाइट उसके पास जो 482 का पावर है, उसके बाद भी हम उसको अलाउड नहीं करेंगे कि भाई वो अपना स्टेप करे बियॉन्ड द एक्सप्लिसिट बार ऑफ 362। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जो 482 का इनहेरेंट पावर होता है वो दो ही सिनेरियो में जो है कोर्ट एक्सरसाइज करता है। पहला तो उस सिनेरियो में व्हेन देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ नॉन लिक्वे मतलब देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ एब्सेंस ऑफ लॉ और देयर इज़ अ गैप इन द प्रोविजन। उस केस में जो कोर्ट है वो अपना एक्सरसाइज करता है 482 का पावर। और दूसरा व्हेन द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट आर मिसयूज्ड,
उसको मिसयूज़ किया जा रहा है तब वो अपना 482 का पावर इस्तेमाल करता है। बट इस केस में क्या हो रहा है, 362 में एक्सप्रेस बार है, तो जब एक्सप्रेस बार ऑलरेडी सीआरपीसी प्रोवाइड करता है तो हम 482 का एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। डिस्पाइट द कोर्ट हैज़ द इनहेरेंट पावर अंडर 482, हम उसको एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। ठीक है, दिस वॉज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब क्या है, जो वेरियस जजमेंट्स जो हैं जो अभी तक कोर्ट्स ने प्रोवाइड किए हैं उन बेसिस पे कोर्ट है उन्होंने कुछ कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को कॉल्ड आउट किया है। कहने का मतलब है कि उन्होंने फिगर आउट किए हैं कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जिसमें हम कोर्ट को एम्पावर करेंगे कि वो अपना जजमेंट जो है वो रिव्यू और ऑल्टर कर सके। ठीक है, अपना जो फाइनल जजमेंट और ऑर्डर है उसको रिव्यू और ऑर्डर कर सके अंडर सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी, राइट। सो डिस्पाइट दिस बार ऑफ 362 कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसमें कोर्ट के पास पावर है कि वो अपना रिव्यू और अल्टर कर सके जो कि कोर्ट्स ने अपने प्रीवियस जजमेंट्स में कॉल आउट किए हैं। अब वो कौन कौन से हैं कि भाई एक्सप्रेस अलाउड बाय सीआरपीसी, अगर सीआरपीसी ने एक्सप्रेसली अलाउ किया है टू रिव्यू और ऑल्टर, अपनी पावर उसको एक्सप्रेसली ग्रांट की है, तो उस केस में जो है कोर्ट उस ऑर्डर या जजमेंट को रिव्यू या ऑल्टर कर सकता है। ठीक, पहली चीज़। दूसरा, जजमेंट पास बाय कोर्ट लैक्स इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन, तो जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया है वही इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन लैक करता था, तो उस केस में भी उसको पावर है कि भाई वो अपना जो है जजमेंट को ऑल्टर या रिव्यू कर सकता है। ठीक है, फ्रॉड और कल्यूजन प्लेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जजमेंट, तो पार्टीज़ ने फ्रॉड या कल्यूजन एक्सरसाइज किया है उस जजमेंट को ऑब्टेन करने के लिए, तो उस केस में भी जो है कोर्ट अपना जजमेंट है रिव्यू ऑल्टर कर सकता है। फोर्थ है मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ कोर्ट कॉज बाय प्रेजुडिस टू पार्टीज, राइट। तो कोर्ट की मिस्टेक की वजह से देयर वाज अ प्रेजुडिस कॉज टू द पार्टीज़ के साथ पक्षपात हो गया है बिकॉज कोर्ट की मिस्टेक की वजह से। उस केस में भी हम कोर्ट को एम्पावर करेंगे टू रिकॉल एंड ऑल्टर और रिव्यू द जजमेंट। ओके, अब एक फिफ्थ सिनेरियो और है। उस केस में क्या है कि भाई जो नेसेसरी पार्टी थी केस के लिए, नेसेसरी पार्टी क्या होती है, जो केस है उसको एडजुडिकेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है उस केस का। वो पार्टी जो उस केस को एडजुडिकेट करने में हेल्प करती है वो नेसेसरी पार्टी होती है, तो उस नेसेसरी पार्टी को नोटिस ही सर्व नहीं किया गया। ठीक है, एक तो वो सिनेरियो, और या फिर जो पार्टी थी वो उसकी डेथ हो जाती है बट उसकी जगह कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया जाता या उसको रिकॉर्ड पे ही नहीं लाया जाता। और इस बारे में, इन दोनों सिचुएशंस के बारे में कि भाई नेसेसरी पार्टी उसको नोटिस नहीं पहुंचा और दूसरा पार्टी डेथ हो गई बट कोर्ट को उसकी डेथ के बारे में पता नहीं था और उसकी वजह से कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया, इसके बारे में कोर्ट को पता नहीं था और उस कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया। इस दोनों सिनेरियो में भी, जो कि फिफ्थ है जिसमें एक ही पॉइंट है जिसमें हम जो है कोर्ट को अलाउ करेंगे कि भाई आप अपना जो जजमेंट है उसको रिकॉल करके अल्टर या फिर रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट डिस्कस्ड इन दिस केस। थैंक यू सो मच।